Hello everyone, I am Rashmi Prabha and welcome to our channel Combine CS The Extra Step. This is a very important topic, types of complexity classes. In this video, I am going to cover all the important points related to what are the complexity classes related to P, NP, Co-NP, NP hard and NP complete problem. Now this topic is again very important for the GATE examination as well as UGC NET examination, as well as you can get the lots of question in the SET examination. And the recent year patterns of the questions that are asked in the examination are very important because they also want to know when we are writing an algorithm. So when we are writing an algorithm, how our algorithm is dependent on the criteria, what are the criteria on which we are going to test an algorithm. So when we are testing an algorithm, there are two important criteria in terms of times and space complexity. And yes, there are lots of algorithms which have different times and space complexity. So that is already covered. In this video, basically, we are going to cover all the complexity classes. And this topic is again very important for the data structure and algorithm, as well as the concept has been used in the theory of computation. And if we will talk about the UGC NET examination, we can expect 2 questions from this topic. And in the GATE examination, we can expect 1 question from this topic. So let us quickly begin our beautiful session. And please don't forget to subscribe our channel for all the notification and for all the videos. Now, in the recent year of examination, if we will see NET examination, they are simply asking you what are 3NF set problem, vertex cover problem, Hamiltonian circle traveling salesman problem. So they belongs to which type of complexity classes. तो आपको क्या करना है, आपको ये चार्ट याद कर लेना है. This is the chart, this is the list of NP complete problem. तो एक तो सबसे important point यही हो गई कि आपको मालूम होना चाहिए कि what are the different types of problems which comes under NPC प्रॉब्लम. इसका शॉर्ट फॉर्म भी कई बार क्वेश्चंस में आपको एनपीसी लिखा होता है, सी रिप्रेजेंट कंप्लीट. तो वो अभी आने वाले वीडियोस में आपको मिल जाएगा कि व्हाट इज एनपीसी, एंड इन द सेम वीडियो आई एम गोइंग टू कवर दिस पॉइंट. ओके, तो सबसे पहले आप ये लिस्ट याद कर लीजिएगा. नाउ क्विकली लेट अस सी व्हाट आर दिस प्रॉब्लम. The first class of family of complexity problem is the P problem. So P is a set of all decision problems solvable in polynomial time. P क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? P रिप्रेजेंट कर रहा है इस टाइप के डिसीजन प्रॉब्लम्स जिसको आप पॉलिनोमियल टाइम में सॉल्व कर पाएंगे. सो दैट इज व्हाई इट इज रिप्रेजेंटेड बाय नॉर्मल P. Or it is the collection of decision problems that can be solved by the deterministic machine in the polynomial time. अब यहाँ पे इसलिए मैंने आपको बोला कि एल्गोरिदम की अगर हम बात करेंगे तो एल्गोरिदम में ऐसे प्रॉब्लम्स जिसको आप पॉलिनोमियल टाइम में सॉल्व कर सकते हैं, दैट इज पी प्रॉब्लम. और अगर हम थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन की बात करें, देयर आर लॉट्स ऑफ मशीन्स लाइक डिटरमिनिस्टिक मशीन, आपका वहां पे ट्यूरिंग मशीन होता है, वहां पे आपके लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा होते हैं. तो हमें मालूम होना चाहिए किस टाइप का प्रॉब्लम कौन सा मशीन पार्स करेगा. ओके, और यस, डिसीजन प्रॉब्लम अगर हम इस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, वी विल गेट अ सॉल्यूशन. सो दैट इज व्हाई प्रॉब्लम्स कैन बी आंसर्ड इन द फॉर्म ऑफ यस एंड नो. तो पी क्या रिप्रेजेंट करता है? पॉलिनोमियल टाइम. आपको ये याद रखना है. क्वेश्चन कैसे एग्जाम में पूछेंगे? तो क्वेश्चन आपके इसके फीचर्स पे पूछ लेते हैं कि विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज करेक्ट और इनकरेक्ट. The solution to P problem is easy to find. Now, because the problem can be solved, so that is why it is easy to find. P is often a class of computational problems that are solvable and tractable. Now, एक बार UGC NET में ये क्वेश्चन भी पूछा है, when we can say a polynomial problem is solvable and tractable. अगर आप किसी भी P problem को solve कर रहे हैं, either you are getting the answer in the form yes or no, then we can say it is a solvable problem. अब tractable किसे बोलेंगे? Tractable means that problems can be solved in theory as well in the practice. But the problem that can be solved in theory but not in the practice are known as intractable. तो ये भी एक बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है कि ऐसे प्रॉब्लम को जिसका आप थ्योरी एज वेल एज प्रैक्टिकल भी सॉल्व कर पाएंगे, दोनों तरीके से जब आप इसको सॉल्व कर पाएंगे, दैट इज नोन एज ट्रैक्टेबल. तो ये सारे पॉइंट्स आपको लर्न होने चाहिए. अब what are some of the examples that comes under this category is calculating the GCD, finding a maximum matching and decision versions of the linear programming. तो ये कुछ examples आपको याद कर लेना है because directly ये देखा गया है GATE examination में और NET examination में. They will give you a list of problem और आपको ये identify करना आना चाहिए कौन सा problem किस category को belong करेगा.
चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे एनपी। सेकेंड इज द एनपी। सो एनपी रिप्रेजेंट द नॉन डिटर्मिनिस्टिक पॉलिनोमियल टाइम। आपको इसका फुल फॉर्म भी मालूम होना चाहिए, और किसी वजह से अगर एग्जामिनेशन में आपने अगर इस टॉपिक को नहीं भी पढ़ा है तो भी ये इतना इजी टॉपिक है। व्हाई? बिकॉज द नेम इटसेल्फ से नॉन डिटर्मिनिस्टिक पॉलिनोमियल टाइम। किसी प्रॉब्लम को अगर आप सॉल्व कर रहे हैं बट उसका जो पॉलिनोमियल टाइम है वो डिटरमाइंड नहीं है, it can take too long to execute or to run that program. So that means that problem comes under the category of NP problem. So NP is a set of all decision problems whose yes answer is takeable in polynomial time. मतलब कि अगर प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर पा रहे हैं तो इस मीन्स कि चलो सॉल्व हो गया, इस मीन्स कि वो पॉलिनोमियल टाइम में सॉल्व हो रहा है। बट अगर नहीं सॉल्व हो पाया तो वो आपको नॉन डिटर्मिनिस्टिक कितने टाइम में सॉल्व होगा, दैट वी कैन नॉट फाइंड। सो दैट इज व्हाई इट इज नॉन डिटर्मिनिस्टिक पॉलिनोमियल टाइम। It is the collection of decision problem that can be solved by non-deterministic machine in the polynomial time. तो ये same definition यहाँ पे लिखा है. And what are the features? The solution of the NP class are hard to find since they are being solved by non-deterministic machine, but the solutions are easy to verify. अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है इसका मतलब आप इजिली इसको वेरीफाई कर सकते हैं, और किसी वजह से अगर प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो पा रहा है इट मीन्स कि फिर यहाँ पे इसको सॉल्व करने में आपको थोड़ी डिफिकल्टी होगी। प्रॉब्लम्स ऑफ एनपी कैन बी वेरीफाइड बाय द ट्यूरिंग मशीन। तो याद यहाँ पे क्या करना है, अभी प्रीवियस वाले पॉलिनोमियल में हमने देखा था इसको आप डिटर्मिनिस्टिक मशीन के थ्रू सॉल्व करेंगे, और जो एनपी प्रॉब्लम है इसको आप ट्यूरिंग मशीन के थ्रू वेरीफाई करेंगे। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स आपको याद रख लेना है। बूलियन सेटिस्फाइड प्रॉब्लम जिसको टू सेट प्रॉब्लम भी बोलते हैं, हैमिल्टोनियन पाथ प्रॉब्लम और ग्राफ कलरिंग प्रॉब्लम आर सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ एनपी complexity class. The third important category you CONP, that is a set of all decision problems whose no answer is takeable in polynomial time. तो आपको ये समझना है हमने पहले P पढ़ा फिर NP पढ़ा तो कॉम्प्लेक्सिटी हमारी इंक्रीज हो रही है। नेक्स्ट इसमें यस नो दोनों का आंसर मिल रहा था, यहाँ पे सिर्फ यस का आंसर मिल रहा था, और जो को NP है इसमें हमें क्या आंसर मिलेगा, इसमें हमें नो का भी आंसर मिलेगा, है ना, नो आंसर इज टेकेबल। तो इस तरीके से आप शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं। Co-NP stands for complement of NP class. Now this name is very important. What does co represent? Co represent complement of NP class. It means if the answer to the problem in co-NP is no, then there is a proof that can be checked in polynomial time. अगर किसी वजह से कोई प्रॉब्लम को आप सॉल्व नहीं कर पा रहे, still we can give the proof कि why we are not able to solve the problem. तो अगर कोई प्रॉब्लम नहीं भी सॉल्व हो रहा है, I am repeating again, if we are not able to solve a problem but still हमने ये प्रूव कर दिया कि इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, it means we have come to some certain conclusion, तो हम कह सकते हैं कि वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ एनपी क्लास होगा। ओके, सो व्हाट आर द फीचर्स? इफ अ प्रॉब्लम एक्स इज इन एनपी देन इट्स कॉम्प्लीमेंट एक्स बार इज आल्सो इन द कोएनपी। तो ये कुछ कुछ थ्योरम आपको याद रख लेना है कि अगर कोई प्रॉब्लम एक्स है एनपी में है तो उसका कॉम्प्लीमेंट भी हमें कोएनपी क्लास में होगा, कॉम्प्लीमेंट। ओके, for NP and co-NP problem, there is no need to verify all the answers at once in the polynomial time. There it is a need to verify only one particular answer, yes or no, in polynomial time for a problem to be NP or co-NP. तो यहाँ पे ये बोला गया कि आप किसी भी एक प्रॉब्लम को वेरीफाई कर लेते हैं, that is fine. Okay, examples to check the prime number integer factorization. तो ये आपको याद कर लेना है कि examples इसके categories में क्या क्या आएंगे। Moving to the next is NP hard. What? Now, why a problem is said to be NP hard if the polynomial time solution for it would imply a polynomial time solution for every problem in NP. अब अगर आप नेट एग्जामिनेशन देखेंगे तो इस डेफिनेशन पे ही कई बार आपके क्वेश्चन पूछ लिया गया है ना। तो क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, इफ है, ये इफ का मतलब है इफ एंड ओनली इफ, और यहाँ पे वो एवरी की जगह एट मोस्ट दे देंगे। तो ये सारी लाइन आपको लर्न होनी चाहिए। अ प्रॉब्लम इज इन NP कंप्लीट इफ इट इज NP हार्ड एंड इफ इट इज NP इटसेल्फ। कहीं हो सकता है कि जब आप इस वीडियो को देखें तो आपको कुछ प्रॉब्लम्स को याद करने में डिफिकल्ट होगा, बट वीडियो को छोड़कर मत जाइएगा, बिकॉज अभी बस इमीडिएट में आपको डायग्राम से इसको रिप्रेजेंट कराऊंगी, ट्रिक बताऊंगी, सो दैट कि आप इस एक वीडियो को अगर आप देखते हैं तो कॉम्प्लेक्सिटी क्लास के हर क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो बने रहिएगा इस वीडियो के एंड तक। Now, an NP hard problem is at least as hardest problem. देखो NP hard है, नाम से ही क्लियर है कि जितने भी प्रॉब्लम है वो रिड्यूस होना चाहिए NP hard में। ठीक है, ऑल NP hard problem are not in NP. अब ये सब क्या है मैं आपको पहले समझा देती हूँ, then we will move to these points. Okay, see. आपको इस प्रॉब्लम को समझने के लिए थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन में मैंने एक वीडियो भी बनाया है, तो आपको यहाँ पे मैं समझा देती हूँ।
अगर कोई प्रॉब्लम गिवन है, ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम गिवन है तो इसका दो ही सॉल्यूशन हो सकता है, या तो आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे, वी आर एबल टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम, और एल्स वी आर नॉट एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम। कोई 50-50 का तो सिचुएशन होगा नहीं, या तो सॉल्यूशन मिलेगा अदरवाइज सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। नाउ अगर हमने किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया तो इसके दो इंपॉर्टेंट केसेस बनते हैं, क्या कि आइदर हम उसको डिसाइड कर सकते हैं, मतलब वो डिसाइडेबल होगा, या फिर वो अनडिसाइडेबल होगा। नाउ दिस टॉपिक इज अगेन अ हाई वेटेज टॉपिक इन द थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, तो कई सारे लर्नर्स को इस पे डाउट होता है, इसीलिए ये टॉपिक मैं यहाँ पे भी कवर कर रही हूँ, क्योंकि अगर आप कॉन्सेप्ट समझेंगे तो दोनों क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर पाएंगे। डिसाइडेबल का ये मीनिंग है कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए या तो हम पॉलिनोमियल टाइप में सॉल्व कर पाएंगे या फिर नॉन पॉलिनोमियल टाइप में सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। अभी हमने पढ़ा पॉलिनोमियल टाइम क्या है और नॉन पॉलिनोमियल टाइम में क्या है। तो इस प्रॉब्लम को जो कि हम सॉल्व कर पा रहे हैं पॉलिनोमियल टाइम में, क्या मैं इसको बोल दूं कि इस प्रॉब्लम को हम ट्रैक्टेबल भी बोलेंगे? जस्ट नाउ वी हैव सीन कि इसकी थ्योरी एज वेल एज प्रैक्टिकल दोनों तरीके से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। सिमिलरली इसको हम बोलेंगे इनट्रैक्टेबल, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब हमें नो में आंसर मिलेगा देन वी कैन नॉट आइडेंटिफाई कि कितने टाइम पीरियड तक हमने उसको सॉल्व किया। और जो प्रॉब्लम अनडिसाइडेबल है, तो क्या मैं इसको ये लिख दूं कि ये सारे प्रॉब्लम वेरी कॉम्प्लेक्स है, और नेट एग्जामिनेशन में और गेट एग्जामिनेशन में भी इससे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। आपको बेसिकली जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो डिसाइडेबल प्रॉपर्टी से पूछे जाते हैं ना, डिसाइडेबल प्रॉपर्टी, और जो डिसाइडेबल नहीं है इट मीन्स कि वो अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम है। तो आपको ये चार्ट याद कर लेना है, ठीक है। आप डिसाइडेबल का मतलब ये भी समझ सकते हैं कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का हमारे पास एक एल्गोरिदम है, दैट इज व्हाई वी आर टेलिंग कि दिस इज अ डिसाइडेबल प्रॉब्लम। ओके, इसको रिप्रेजेंट करने का ये तरीका है कि मान के चलते ये हमारा यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स है, यहाँ पे कुछ ऐसे प्रॉब्लम होंगे जिनको हम पॉलिनोमियल टाइम में सॉल्व कर लेंगे। तो बड़े हिस्से में यूनिवर्स में से कुछ प्रॉब्लम को हमने सॉल्व कर लिया, और फिर सारे प्रॉब्लम कैसे हो जाएंगे? एनपी प्रॉब्लम हो जाएंगे, कि चलो सारे प्रॉब्लम में से कुछ को सॉल्व कर पा रहे हैं तो कुछ को नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं। उसके बाद कुछ इंटरसेक्शन में ले लेंगे, और ये वाला सेक्शन आपका एनपीसी आ जाएगा, दैट इज एनपी कंप्लीट, एंड ये हो जाएगा आपका एनपी हार्ट। तो दिस डायग्राम इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। फिर से मैं बता दे रही हूँ, किसी भी यूनिवर्स में कई तरीके के प्रॉब्लम्स होते हैं, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व होंगे, कुछ प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होंगे। तो कुछ प्रॉब्लम जो सॉल्व हो जाएंगे आप इसको बोलोगे पॉलिनोमियल पी टाइप। तो दैट इज वाई ये प्रॉब्लम किस कैटेगरी में आएगा? इजी कैटेगरी में आएगा। और बाकी मैं यहाँ पे सिग्मा स्टार बना देती हूँ कि सारे प्रॉब्लम्स यहाँ पे आ जाएंगे। एनपीसी आपका यहाँ पे हार्ड प्रॉब्लम है जिसको हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, और एनपी हार्ड तो ऐसे प्रॉब्लम है कि जिसको आप कभी भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे, दे आर अनबाउंडेड, है ना। अनबाउंडेड एक काफी तरीके के प्रॉब्लम्स यहाँ पे हो सकते हैं, एंड दिस इज अ फुल फॉर्म एनपीसी कंप्लीट और एनपी हार्ड, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आपको इस तरीके से पूछ लेंगे, जैसे P1 को अगर मैंने इस तरीके से लिख दिया, व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि हम P1 को रिड्यूस कर सकते हैं इसमें P2 में। तो ये टर्म्स आपको याद रखना है, विच इज रिटन लाइक दिस। और इसको आप इस तरीके से भी कई बार एग्जामिनेशन में क्वेश्चन देखेंगे, तो इट मीन्स रिड्यूसिबल। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। आई होप इस डायग्राम तक आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब मैं पीछे के स्लाइड्स में जाऊंगी, सो दैट आपको अब वो स्टेटमेंट पढ़ने में समझ में आएगा। So this was the thing. So a problem is in NP complete if it is NP hard and it is NP itself. ठीक है, तो अभी हमने देखा कि this is a problem P, NP, और यहाँ पे आपका NPC है। तो कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आप क्या करेंगे, एग्जामिनेशन में जो आपको रफ शीट मिलती है आप वहां पे इस प्रॉब्लम को बना लेंगे, इस डायग्राम को बना लेंगे, देन यू आर गोइंग टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। तो इजिली वो प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा और आपको आंसर्स मिल जाएंगे, ठीक है। इसके फीचर्स भी, यस, ऑल एनपी हार्ड प्रॉब्लम्स आर नॉट इन एनपी। अब ये जो स्टेटमेंट है ये आपको यहीं से वेरीफाई हो जाएगा, किसी एनपी हार्ड यहाँ पे है तो कैसे हम बोल सकते हैं कि एनपी हार्ड के सारे प्रॉब्लम यहाँ पे एनपी होंगे। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। और ये स्टेटमेंट अगेन यूजीसी नेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, दे हैव आस्क्ड यू इन द ट्रू एंड फॉल्स। अब प्रॉब्लम ए इज इन एनपी हार्ड। चलो यहाँ पे एक प्रॉब्लम मैं बना देती हूँ कि ये एक प्रॉब्लम है यहाँ पे ए, ठीक है। फॉर एवरी प्रॉब्लम एल इन इट, ये एल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? लैंग्वेज, की कोई एक लैंग्वेज, लेटर सपोज ये मैं एल लैंग्वेज ले ली, तो ये थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन का स्टेटमेंट है ना कि लैंग्वेज कैन बी एनीथिंग। आप इसको सिग्मा स्टार से रिप्रेजेंट करते हो, इट कैन बी 1 2 3 4, इट कैन बी ABCD, इट कैन बी एनी सिंबल। इस तरीके से हम लैंग्वेज को डिफाइन करते हैं। फॉर एवरी प्रॉब्लम एल इन एनपी देयर एग्जिस्ट अ पॉलिनोमियल टाइम रिडक्शन टू लैंग्वेज टू ए। तो यहाँ पे अगर कोई लैंग्वेज डिपेंड करता है तो ऑब्वियस सी बात है कि कुछ लैंग्वेज यहाँ पे ऐसे भी होंगे तो आप इसको रिड्यूस कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये सम हाउ दीज आर द इजी प्रॉब्लम
एज कंपेयर टू एनपी हार्ड प्रॉब्लम। ये इसके कुछ एग्जाम्पल्स गिवन है। Now, this is the last family, NP complete class. A problem is in NP complete if it is both NP hard, NP and NP hard। ठीक है, हमने क्या देखा कि इसका इंटरसेक्शन यहाँ पे था। ठीक है, और ये हार्ड प्रॉब्लम्स होता है NP में। NP complete problems are special as any problem in NP class can be transformed or reduced into NP complete problems in polynomial time। ये सेम ही चीज को यहाँ पे घुमा फिरा के लिखा है, तो आप इतना डिफिकल्टी में मत जाइए। आपको क्या करना है कि आपको ये चार्ट याद रखना है कि इस तरीके के प्रॉब्लम्स होते हैं, सॉल्वेबल, अनसॉल्वेबल, डिसाइडेबल, अनडिसाइडेबल। ठीक है, और ये डायग्राम याद रखना है। इसके बाद एग्जाम पर्सपेक्टिव से आप इस चार्ट को याद रखेंगे कि ये सारे जो प्रॉब्लम्स होते हैं, दिस ऑल प्रॉब्लम फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ एनपी कंप्लीट। और ये चार्ट को, इस चार्ट को याद रखिएगा, इसको हम बोलते हैं चीट नोट, है ना। चीट नोट लेके मत जाइएगा एग्जामिनेशन में, चीट नोट बस आपके ये याद करने के लिए है। P represent easily solvable in polynomial time, NP represent yes, answers can be checked in polynomial time। जिस एल्गोरिदम का आप सिर्फ यस आंसर दे सकते हैं उसी को हम पॉलिनोमियल टाइम में चेक कर पाएंगे। को एनपी का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट, जिसमें हम नो आंसर्स को भी चेक कर पा रहे हैं। एनपी हार्ड का मीनिंग है ऑल एनपी हार्ड प्रॉब्लम्स आर नॉट इन एनपी एंड इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू चेक अ प्रॉब्लम। अ प्रॉब्लम दैट इज एनपी एंड एनपी हार्ड इज एनपी कंप्लीट। तो ये चिट नोट आपको याद रखना है। कई बार यूजीसी नेट में ये देखा गया कि आपको सिंपली पूछ लेंगे मिनिमम सेट कवर क्या है, मैक्स इंडिपेंडेंट सेट क्या है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे स्मॉल स्मॉल इसके डेफिनेशन दे दिए हैं, आप इसको जरूर एक बार चेक कर लीजिएगा। हैमिल्टोनियन पाथ, साइकिल, सो दिस ऑल कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ एनपी कंप्लीट। ओके, अब ये हमने पढ़ लिया। कुछ यूजीसी नेट और गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आप इस पे सॉल्व कर लेंगे। जैसे एक सिंपल क्वेश्चन है, अब पूछा जाता है कि 3 सेट प्रॉब्लम क्या है। 3 सेट प्रॉब्लम है, ये बिलोंग करेगा आपके एनपी कंप्लीट में, तो इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, इसके बाद जो 2 सेट प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम आपका आता है पी प्रॉब्लम में। तो ये डायरेक्टली यूजीसी नेट का और गेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और यूजीसी नेट में तो सिंपली इसके आपके क्वेश्चन इज कमिंग डायरेक्टली फ्रॉम द गेट क्वेश्चन, और इसमें कुछ भी एक्सप्लेनेटरी नहीं है। कुछ पॉइंट आप याद रखेंगे तो आप इजिली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि कौन सा प्रॉब्लम किस में आता है। इसके बाद एक क्वेश्चन मैं इस तरीके से पूछ लेती हूँ कि ये P है विच इज गिवन कि इट इज नॉट इक्वल्स टू NP। ठीक है, यहाँ पे मैंने बता दिया P इज नॉट इक्वल्स टू NP। तो इससे आप क्या मतलब निकाल सकते हो? ऑप्शन एक मैं ये दे देती हूँ, NPC इक्वल्स टू NP है, इसका ये मीनिंग आएगा क्या? या NPC इज इंटरसेक्शन, इसका P लूंगी तो ये फाई आएगा। सी क्वेश्चन पूछ लेती हूँ, सो दिस इज द क्वेश्चन गिवन है। Yes. So this is the question here. Assuming P is not equals to NP, P is not equals to NP, तो which of the following statement is true? तो प्लीज इस क्वेश्चन को डायग्राम बना लीजिए। जैसे मैं यहाँ पे डायग्राम बना लेती हूँ। ठीक है, P NP हो गया यहाँ पे। सो दिस इज द रॉन्ग डायग्राम, वेट। सो ये आ गया P। ठीक है, दिस इज NP, देन यहाँ पे मैं NPC बनाऊंगी और यहाँ पे मैं NP हार्ड लिखूंगी। तो ये क्लियरली यहाँ पे गिवन है P इज नॉट इक्वल्स टू NP, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू आपको बताना है। तो P इज नॉट इक्वल्स टू NP, इससे क्या मीनिंग समझ में आएगा? ठीक है, तो अगर आप देखो NP कंप्लीट क्या NP के इक्वल होगा? नहीं, अभी हमने जस्ट ये देखा NP हार्ड भी NP के कंप्लीट नहीं होगा, ये भी इसके इक्विवेलेंट नहीं है। तो इट मीन्स कि ये तीनों ऑप्शंस हमारे एलिमिनेट हो गए, ये हमारा आंसर है। तो दिस इज द गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2012 का 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो आप इस तरीके से इस डायग्राम के बेसिस पे इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं 2006 का, और ये बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपके यूजीसी नेट में डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए। Let S be an NP complete problem and Q and R be the 2 other problems not known to be NP. Q is polynomial time reducible to S and S is a polynomial time reducible to R. Which one of the following statement is true? Reducible का कॉन्सेप्ट है, P Q R आपको ले लेना है, इस तरीके से डायग्राम बना लेना है और इस वैल्यूज को यहाँ पे पुट करना है, देन यू आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का आंसर जरूर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद कुछ क्वेश्चंस ऐसा देखा गया है कि लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, बट यस अगर आपको डिसाइडेबल का कॉन्सेप्ट पता है तो आप इजिली उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। सिंपली इस तरीके के भी क्वेश्चन एक बार पूछे गए हैं, लाइक वहां पे आपको दे देंगे कि सपोज ये पॉलिनोमियल टाइम का एल्गोरिदम है जो कि कंप्यूट कर रहा है लार्जेस्ट क्ली। ठीक है, और किस तरीके से आप इसको डायग्राम में रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो अब आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि क्ली कैसा प्रॉब्लम है। सो दिस इज द प्रॉब्लम कम्स अंडर NP C प्रॉब्लम।
ओके तो किस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसके डायग्राम गिवन होंगे, देन यू आर गोइंग टू सॉल्व इट। तो ये कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे स्लाइड में रखे हैं, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस, टेक द स्क्रीनशॉट एंड यस दिस नोट्स आई विल बी गिविंग इन द टेलीग्राम। तो टेलीग्राम को ज्वाइन करके रखिए सो दैट कि आप इसको पढ़िए, इसको सॉल्व करें। सो दिस वाज वन ऑफ द वीडियो रिलेटेड टू वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी क्लास। इसी तरीके से चैनल के साथ बने रहिए, सब्सक्राइब करके रखिए, आने वाले समय में आपको कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस मिल जाएंगे जो आपके अपकमिंग एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टे ट्यून, स्टे सब्सक्राइब। कोई भी डाउट होता है इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस एंड सपोर्टिंग अस।